Okay, now we are going to discuss atom. Okay, if we see atom nuclei, this is one unit. Okay, atom near about the weightage is 3 to 4 marks, but it is easy chapter. It is similar with chemistry. Okay, so easy chapter. Now in this chapter we are going to discuss the alpha particle scattering experiment, Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model, the expression for radius, velocity and energy of electron in a cell, then atomic spectra. Okay. Now what do you mean by alpha particle? Alpha particle is double charged helium ion. It has 2 unit charge and 4 unit mass. Okay. The Giger and Marsden, two associates of scientist Rutherford, performed alpha particle scattering experiment. That's why alpha particle scattering experiment is also known as Giger and Marsden experiment. In this experiment, alpha particles are taken and allowed to bombard on the metal target. What is the experimental arrangement? The arrangement is like this. Look at here. This is a lead container where the alpha particle, source of alpha particle is produced by radioactive nuclei, gallium, thorium, uranium, plutonium. So there it is kept inside the lid. So now with the small hole the alpha particles are allowed to focus in a particular direction. What is this? Gold foil. Thin gold foil. When the alpha particles hit the gold foil, they pass through it but scattered in different direction. Look at here, they scattered in different direction. In what direction, how many alpha particles scattered, कौन सा direction में कितना alpha particle जा रहा है, ये detect करने के लिए screen लिया गया है. The screen is around it. It is used to collect the number of alpha particles scattered in different directions. Okay. Now question is, what is our aim? What is the aim of this Giger and Marsden alpha particle scattering experiment? To study about structure of atom. Atom के अंदर क्या है? ठीक है? First proposed by atom model proposed by John Dalton. Then according to John Dalton, atom is the smallest particle. Okay, it is not in syllabus. Left it. Now why gold is taken? Because gold is most malleable substance. इससे पतला कोई नहीं हो सकता. जितना पतला होगा एटम के बारे में हमें कंक्रीट नॉलेज होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई गोल्ड इज टेकन. एंड व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दैट गोल्ड? लुक एट हियर, 2.1 into 10⁻⁻7 meter. Very small. It is very small, very thin gold foil. Okay. Now in exam you have to draw this diagram. These are the lead bricks. This is the source of alpha particle. Alpha particle pass along this direction. This is the what? Gold foil. They scattered. This is what? ZNS screen. So what are the observations? Most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. Some of the alpha particle deviate with more angle. Very few alpha particles scattered, bounce back. What are 3 observations? Most of the alpha particle pass through the gold foil without deflection. Okay, you have already studied in chemistry in lower class like this. देखिए, ऐसे पढ़ा था. This is gold. This is gold atom. Large number of alpha particles pass through without any deflection. Some particles deviate with more angle, and few particles retrace the path. Okay. Now, what does this graph represent? बच्चे, what is this? Theta, angle of scattering. अच्छा, जो सीधा चला गया उसके लिए angle of scattering कितना? 0. जो रिटर्न कर गया उसके लिए angle of scattering कितना? 180. तो ज़्यादा से ज़्यादा 180 होगा. तो देखो 180 में खत्म हो गया, ये 180 है. So this is theta and this is number of alpha particles scattered at angle theta. What is the value of theta here? 0. Where the number of alpha particle is maximum. It gradually decreases and finally it is 180. for 180 it is the minimum. Is it clear? Okay. Now, what are the observations? Really? Yes. Observation, most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. Okay. Some of the alpha particles deviate with more angle. Very few, that means 1 in 8,000, they retrace their same path.
ना लेट अस टेक द कंक्लूजन। बच्चे सपोज आपके आंख में एक पट्टी बांध दिया गया और आपके सामने ऐसे आयरन का प्लेट लटका हुआ है, कहीं खाली जगह है और कहीं थर्मोकॉल लटका हुआ है। अरे बात समझा करो, कहीं थर्मोकॉल लटका हुआ है, कहीं खाली है, तो कहीं आयरन प्लेट लटका हुआ है। आपके आंख में एक पट्टी बांध दिया गया और कुछ हाथ में कंकड़ दे दिया गया, बोला गया फेंको, और वो साउंड से या वो कंकड़ से पता करोगे वहाँ क्या था। बताइए, कंकड़ सीधा चला गया, मतलब वहाँ क्या है, खाली है, और कंकड़ वापस आ गया तो आयरन प्लेट है, क्योंकि आयरन हेवी है, वहाँ से वापस आएगा। थर्मोकॉल से वापस आएगा, थर्मोकॉल लाइट है। ओके, तो थर्मोकॉल जहाँ रहेगा वहाँ क्या करेगा, ना सीधा जाएगा ना वापस आएगा, लगने के बाद थोड़ा डेविएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अप्लाई द सेम टेक्निक। Most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. What did you conclude? Most part of the atom is empty. ज्यादातर जगह खाली है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और वो डेविएट हो जा रहा है, मतलब कोई रिपेल कर रहा है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस? सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, रिपेल करेगा, इसलिए तो भाग गया। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। बाउंस किया, थर्ड पॉइंट, बाउंस करेगा मतलब वहां जरूर क्या है, हेवी है। तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज मासिव, टोटल मास ऑफ द एटम इज concentrated at its center. What it is known as? Nucleus. So total mass is deposited at the center. Is it clear about conclusion? Okay. Based upon this, Rutherford proposed atomic model. इसके बारे में मॉडल बताया। क्या बताया उन्होंने? According to Rutherford's atomic model, the central part of the atom is massive and positive charge known as nucleus. उन्होंने पूरा एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस, देन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एंड द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड हेवी, द टोटल मास इज डिपोजिटेड एट द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट इज इन ऑर्डर ऑफ फर्मी। बेटे 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। देयर इज सम लिमिटेशन ऑफ। अच्छा, नाउ कम टू इंपैक्ट पैरामीटर। एक है इंपैक्ट पैरामीटर और एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? देखो, जैसे ये हो गया आपका एटम, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हुआ सेंट्रल लाइन, ये एक अल्फा पार्टिकल ये लाइन से आ रहा है। डेविएशन से पहले सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। आई रिपीट दिस, इमेजिन दिस इज एटम, दिस इज न्यूक्लियस, ये हो गया सेंट्रल लाइन, दिस इज अल्फा पार्टिकल, ऐसे आया और सपोज यहां से डेविएट हो गया। तो डेविएशन से पहले ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर किसका होता है? फॉर ए पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल। अलग अलग अल्फा पार्टिकल का अलग होगा। बताइए, ये और एक अल्फा पार्टिकल है, इसका इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा? ये इसका देखो, इसका ज्यादा नहीं होगा, देखो नहीं, ठीक है। अच्छा, एक पार्टिकल गया और वापस आ गया, इसका इंपैक्ट पैरामीटर कितना है? 0। तो the alpha particle which reflect back the impact parameter is 0। तो बताइए, जब इम्पैक्ट पैरामीटर कम होते जाएगा एंगल धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है और एंगल 0 है, पास आया थोड़ा बढ़ा, और आया और बढ़ा, और आया तो रिटर्न कर गया। तो जितना इम्पैक्ट पैरामीटर घटेगा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना करीब गया। ये है न्यूक्लियस, ये है एटम, ये अल्फा पार्टिकल गया, एटम के अंदर तो घुस गया, यहीं से वापस आ गया, यहीं से क्या हुआ, वापस आ गया। तो ये जो डिस्टेंस गैप रह गया किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस का सेंटर और अल्फा पार्टिकल का सेंटर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। बताइए, यहाँ से जा रहा है स्पीड से, जितना आप एक याद करो, एक एडवर्टाइज आता था, यहाँ पर एक टेबल फैन होता था। क्या होता था? टेबल फैन। महेंद्र सिंह धोनी एडवर्टाइज करता था। यहाँ पर हवा आता है
और यहाँ पर वो कागज का टुकड़ा, कागज का बॉल फेंकता है। जितना ज़्यादा स्पीड जाएगा उतना फैन के पास जाएगा, स्लो फेंकेगा तो दूर से भाग जाएगा। तो आप समझ रहे हो, जितना पास जाएगा फैन का वो होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कागज का स्पीड या एनर्जी के ऊपर। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अप्लाई द सेम टेक्निक। ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, यस, डी क्या होगा? लेस हो। जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उतना करीब जाएगा। हाउ कैन यू डिराइव द एक्सप्रेशन? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम। पहले टोटल एनर्जी जितना होगा, बाद में टोटल एनर्जी उतना ही होगा। टोटल एनर्जी मीन्स वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अनदर इज काइनेटिक एनर्जी। पहले इसका एनर्जी कितना था? काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 बाई आर में नहीं इन्फिनिट लिया क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत दूर में था। बाद में ये तो रेस्ट को आ गया, तो रेस्ट को आने से इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। और इसका क्या आएगा? के Q1 Q2 बाई डी, और इक्वेटिंग कर दो, है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यस, के Q1 Q2 बाई डी। तो D इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई ई के। बच्चे के तो आपका कांस्टेंट है। Q1 कितना? व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? 2e। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड? क्योंकि गोल्ड लिए थे, तो एक्चुअली इट इज Ze। Z इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ कितना उसके अंदर प्रोटॉन है? 79। गुड। डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो D इज इक्वल टू 2kZe स्क्वायर बाई ई के। रिमेंबर इट। ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, लेस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। v 0 नहीं होगा बेटा, वो जाएगा, रुकेगा तब तो वापस आएगा, है कि नहीं? तो रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। ओके, तो फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 2kZe स्क्वायर बाय ई के। बताइए, इफ काइनेटिक एनर्जी बिकेम डबल, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिकेम हाफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। And for gold, this is Z is how much? 79. So after putting this value, it is observed that it is in the order of few Fermi. It is in the order of few Fermi. यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है 30 Fermi। देखिए न्यूमेरिकल, yes, this question. How much? 30 Fermi. So it is few Fermi. So distance of closest approach is in few Fermi. So remember, distance of closest approach किसके किसके बीच में distance है? तो इसका मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस है उससे कम होगा। बच्चे ये हुआ एटम, ये हुआ न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आ गया, ये हो गया आपका डी, जबकि ये क्या है उसका रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये आपका 30 हो रहा है तो रेडियस 30 से कम होगा कि नहीं? तो एक क्वेश्चन है, हाउ डज Giger and Marsden experiment lead to know about the size of the nucleus? मतलब ये एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के साइज के बारे में कैसे पता चलता है? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 30 Fermi से कम होता है, 30 Fermi होता है, सो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी लेस देन। क्यों? अल्फा पार्टिकल क्या न्यूक्लियस के अंदर घुस नहीं सकता ना, द न्यूक्लियस हैज हाई डेंसिटी, अल्फा पार्टिकल कैन नॉट एंटर इनटू द न्यूक्लियस, जो भी होगा बाहर से आता है, इसीलिए साइज छोटा होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट विल लूज इट्स एनर्जी। तो एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा? ग्रेजुअली इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस।
so finally fall into the nucleus. That means it cannot explain the stability of the nucleus. Is it clear? नहीं समझ में आया? ऐसा है, तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे घूमते 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 आकर यहाँ गिर जाएगा, तो गिरेगा तो ब्रेक कर जाएगा, तो ये तो समझा नहीं था. So Rutherford unable to explain the stability of the nucleus. It also unable to explain the atomic spectra. ठीक है, लाइमन, बामर, इसको भी समझा नहीं पाया. Okay, so now electron orbit and energy of the electron. बच्चे, here we are going to relate between energy of the electron in an orbit with its radius. ठीक है, potential energy, kinetic energy and total energy. What is the formula for kinetic energy? Half mv square. What is the formula for potential energy? K q1 q2 by r. Here electrostatic potential energy. और दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल आ जाएगा. But here we want to express in terms of radius. बहुत इजी है, देख लीजिए. देखो, electrons are revolving around the nucleus. The first thing you should keep in mind that ये देखो, ये पॉइंट देखिए. यस, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय लॉरेंट, नहीं लॉरेंट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो बच्चे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये जेडी है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज के q1 q2 बाई आर स्क्वायर. q1 कितना? जेडी. q2 e बाई आर स्क्वायर. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाई आर. तो दोनों की इक्वेटिंग कर दी, एक आर कट गया, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेडी स्क्वायर बाई आर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर. तो mv स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, 2 नीचे रह जाएगा, के जेडी स्क्वायर बाई 2r. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया. बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ना के q1 q2 बाई आर. पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही ले लिए, इसका जेडी, तो के जेडी स्क्वायर बाई आर. माइनस रहेगा या नहीं? माइनस रहेगा. अब टोटल एनर्जी दोनों को प्लस कर दो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो के जेडी स्क्वायर बाई कॉमन था, ले लिया, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो गया, तो ये बन गया माइनस के जेडी स्क्वायर बाई 2. देखो आप कैसे याद रखोगे, देखिए एक हो गया के जेड ई स्क्वायर बाई 2r और एक है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r और एक है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर. देखो व्हिच नेवर बी नेगेटिव? काइनेटिक एनर्जी. तो ये किसका फॉर्मूला है? के जेड ई स्क्वायर बाई 2r. काइनेटिक एनर्जी जितना उसका जस्ट नेगेटिव क्या है? टोटल एनर्जी. क्या है उसका? इसका डबल. देखो नीचे 2 था, यहाँ 2 नहीं रहा, तो ये डबल हो गया, तो ये क्या है? आप जरा देखिए, ये दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा कि नहीं? के जेड स्क्वायर बाई आर कॉमन लोग, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1/2. व्हाट इज हाफ माइनस 1? माइनस हाफ. हुआ कि नहीं? तो कौन किसका डबल है बताइए रिलेशन? पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है टोटल. बच्चे ये बड़ा कंफ्यूज होते हैं. बच्चे बोलते हैं सर टोटल एनर्जी तो ज़्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ क्या हो रहा है? ये माइनस में है. जैसे एक हो गया -10 और एक हो गया -5. रियली बड़ा कौन है? -5. तो -5 तो -10 का हाफ है, फिर भी तो बड़ा हुआ कि नहीं? क्योंकि यहाँ माइनस है, इसीलिए टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इज इट क्लियर? अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है. बताइए टोटल एनर्जी हो गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना, काइनेटिक कितना? फटाफट बोलो तुम लोग. पोटेंशियल होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी बोलो फट से. -13.6. माइनस नहीं रहेगा, टोटल में माइनस होता है तो काइनेटिक में नहीं रहता है. तो माइनस नहीं दिखा, ठीक है. और पोटेंशियल उसका हाफ होगा या डबल? पोटेंशियल डबल हो जाएगा. टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो 2 × हो जाएगा ना, तो इसका 2 × करोगे तो कितना आएगा? -27.2 इलेक्ट्रॉन. आपको एग्जाम में चेक करना है, दोनों को प्लस कर दो, देखो ये आ जाएगा. देखिए 13.6 -27.2, तो -13.6 आएगा कि नहीं? इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना? नहीं
ओके, एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था। अच्छा बताइए, काइनेटिक एनर्जी हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी बोलो माइनस नहीं पोटेंशियल है बाई 2 3.4 बाई 2 अच्छा -6.8 अच्छा, सपोज कोई बोलेगा 3.2 माइनस लगा देगा माइनस 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, टोटल एनर्जी कितना होगा इसका नेगेटिव -3.4। अगर ये दोनों को प्लस कर दो ये नहीं आएगा। देखिए 3.4 माइनस 1.7 आएगा -3.4। बच्चे ये गलत बोल दिया आपने, ये डबल होगा, ये पोटेंशियल हमेशा डबल होगा। सर 6.8 ठीक है, किस केस में वो हाफ हो जाएगा मुझे वो अभी तक समझ नहीं टोटल एनर्जी पोटेंशियल का हाफ है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल। तो आपको पोटेंशियल पूछा है तो 2 इंटू करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा पूछा क्या है। ओके, क्लियर हो गया। तो नाउ कम टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का 3 पोस्टुलेट है। क्या है? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन, देखो प्रॉब्लम कहाँ था, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, उसको पहले बताया। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट। मन मर्जी इधर उधर नहीं घूम पाएगा, इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट। ओके, ठीक है, ये देखो आ गया। And in that permitted orbit, electron neither lose energy nor gain energy. Now, what is the angular momentum? The angular momentum is integral multiple of nh by 2 pi. Angular momentum formula होता है mvr equal to nh by 2 pi. n होता है 1 2 3. मतलब the electron in first cell must have angular momentum 1h by 2 pi. Second cell 2h by 2 pi. Third cell 3h by 2 pi, like this. It is integral multiple of h by 2 pi. ठीक है, angular momentum. Last one is they can lose or gain energy. They can jump from higher to lower energy or lower to higher energy. So when electron jump from higher to lower, they lose energy. And when the electron jump from lower to higher, they gain energy. What is the energy exchange? ना हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। जब वो जंप करेगा कुछ तो रेडिएशन देगा ना, तो वो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होगा न्यू। E2 माइनस E1 इक्वल टू एच। E2 क्या है? हायर एनर्जी, E1 लोअर एनर्जी। इज इट क्लियर? पोस्टुलेट्स फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट नोन एज सेल। They neither lose nor gain any energy in that cell. Second क्या है? The angular momentum of electron in a cell is integral multiple of h by 2. Third, E2 minus E1 equal to h. Is it clear? Now, applying Bohr's atomic model, we can derive the formula for radius, velocity, and energy. बच्चे याद रखना, when electron revolve around the nucleus, there are 2 variables, R and V. V क्या है? वेलोसिटी। आर क्या है? दोनों मालूम नहीं, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। कहां से 2 इक्वेशन लाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k q1 q2 बाय देयर इज नो नीड टू टेक साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनदर बोर्स एटॉमिक मॉडल mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई, और 2 से हो गया। ठीक है, तो यहां कर दिए mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k e into e। e क्यों लिए रे भाई? For hydrogen atom. This is known as application of Bohr's atomic model for hydrogen atom. यहाँ देखो ये हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1। तो mv स्क्वायर बाय r इक्वल दिस, तो यहाँ से r मिल गया। अगेन mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई, तो जो r मिला था वो r यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, सॉल्व करने से v आ गया 2 पाई k स्क्वायर बाई nh। और v को लेकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो ये r में, तो r आ जाएगा। ठीक है, तो r आ जाएगा k स्क्वायर बाई दिस। तो फॉर्मूला देखिए, r इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर। v इक्वल टू 2 पाई k स्क्वायर बाई nh। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, मैं इसे याद रखा हूँ। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ऊपर में n स्क्वायर रहेगा।
वेलोसिटी नीचे n रहेगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, ना v मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी कर देंगे हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे k q1 q2 बाई r पुट कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे टोटल एनर्जी कर देंगे। ये थोड़ा डेरिवेशन आप लोग देख लो, वेरी सिंपल, जस्ट खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन और बड़ा बात नहीं। दो इक्वेशन से डेरिवेशन होगा, क्या क्या बोलो पहले, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के q1 q2 बाई आर, नहीं आर स्क्वायर के q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स है ना, फोर्स है आर स्क्वायर, पूछ सकते हैं। तो के q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वन q1 इज ई, q2 इज ई, हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन नहीं होता तो जेड ही होता है। अनदर इज mvr इक्वल टू nh बाई 2, दोनों से सॉल्व कर देना। ओके, तो देखिए लास्ट को r इज इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर। हाउ r डिपेंड अपॉन n? डायरेक्टली r1 बाई r2 इक्वल टू n1 बाई n2 स्क्वायर। व्हाट इज वेलोसिटी? 2 पाई k स्क्वायर बाई nh। ओके, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, उल्टा हो जाएगा, v1 बाई v2 इक्वल टू n2 बाई n1, उल्टा हो गया। देन एनर्जी माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई 4 बाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर, याद रखना माइनस रहेगा, नीचे एन स्क्वायर रहेगा, माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो ये u1 बाई u2 इक्वल टू n2 बाई n1 स्क्वायर। बच्चे माइनस नहीं रहेगा, रेशियो में माइनस कट जाएगा। ठीक है, दोबारा बताइए तो, बोलिए। R1 by R2 हाँ बोलिए। हाउ डज r डिपेंड अपॉन n? हाउ डज v डिपेंड अपॉन n? हाउ डज e डिपेंड अपॉन n? तो r1 by r2, v1 by v2, ये गलत है, 1/3 होगा, रेडियस की u1 by e2 इक्वल टू n2 by n1। इज इट क्लियर? अच्छा, सर ये क्या है? n इक्वल टू 1, इट इज फर्स्ट सेल, ग्राउंड सेल। क्या नाम है इसका? ग्राउंड सेल। अच्छा, व्हाट इज फास्ट एक्साइटेड स्टेट? फास्ट एक्साइटेड n इज इक्वल टू 2। सेकेंड एक्साइटेड n इज इक्वल टू 3। एक्साइटेड में एक ज्यादा होगा, एक्साइटेड में एक ज्यादा हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर हाईएस्ट एनर्जी लेवल? हाईएस्ट एनर्जी लेवल मीन्स हाईएस्ट एनर्जी लेवल n इक्वल टू इंफिनिटी। n इंफिनिटी होगा तो e कितना होगा? देखो माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, देख लीजिए माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, n कितना होगा? 0। ओके, ग्राउंड स्टेट 1 n इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात याद रखो, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ NH सेल इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट सेल का कितना होगा? माइनस 13.6। सेकेंड सेल 2 स्क्वायर करेगा, माइनस 13.6 बाई 4 माइनस 3.4, ऐसे करते जाएगा। लेकिन मेरा जो मुद्दा था वो हट गया। बताइए, अब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड सेल एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट? 3/6। तो ये 3 पुट करोगे और ये 6, तो 3/6 1/2 स्क्वायर कितना हो गया? 1:4। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट? 1/4। तो यहाँ पुट क्या करेगा? 4/1, क्योंकि मैंने थर्ड एक्साइटेड बोला तो 4 हो गया, तो पहले देखो 4 आएगा और ये 1 आएगा, 16। समझ में आया? ऐसे कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक होता है हाइड्रोजन लाइक एटम। व्हाट आर हाइड्रोजन लाइक एटम? हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स दोज आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, दोज आयंस लाइक हीलियम प्लस। वैसे हीलियम का 2 होता है, प्लस कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये सब रेशियो पूछा गया, क्वेश्चन है।
ये सब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड फिफ्थ एनर्जी लेवल। सेकेंड एक्साइटेड मतलब कितना हो गया 3, फिफ्थ एनर्जी लेवल मतलब 5, 3 और 5 उसका एनर्जी लेवल, एनर्जी का रेशियो बोलो। एनर्जी में क्या होता है उल्टा हो जाएगा 5/3 स्क्वायर, तो 25:9। अच्छा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम लाइक हीलियम प्लस लिथियम 2+, इसमें जेड आ जाएगा। तो फॉर्मूला में जहां आपका E² था वहां जेड आएगा, E4 होगा तो Z²। आप देखिए Z², लेकिन यहाँ Z² E4, तो क्या हो जाएगा R1/R2 N1/N2 स्क्वायर Z2/Z1। मतलब ऐसा है बच्चे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/Z, V प्रोपोर्शनल टू बोलिए Z/N, एंड E प्रोपोर्शनल टू -1/N² था, माइनस Z²/N², Z² होगा जहाँ N², ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? तो इसमें रेशियो कभी कभी पूछ लेगा कि हीलियम का था, अच्छा एक हीलियम का पूछा हाइड्रोजन के साथ तो उस टाइम जेड आ जाएगा। खाली हाइड्रोजन का पूछा तो जेड तो 1 हो गया, कट जाएगा। खाली हीलियम पूछेगा तो जेड कट जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ हीलियम का पूछ लिया तो जेड आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए बताइए, हीलियम प्लस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड हाइड्रोजन फिफ्थ एनर्जी लेवल। देखिए एनर्जी रेशियो निकालो तो देखिए, फर्स्ट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू माइनस ओके। अब देखिए, सो वी कैन राइट E1/E2 इक्वल टू Z1/Z2 होल स्क्वायर बट N2/N1 स्क्वायर। व्हाट इज Z1? देखो पहले किसका नाम हीलियम लिया गया, हीलियम का जेड कितना 2 और हाइड्रोजन 1। व्हाट इज N2? N2 मतलब हाइड्रोजन का क्या बोला है फिफ्थ एनर्जी लेवल, तो 5 लेंगे। N1 हीलियम का सेकेंड एक्साइटेड मतलब 3, ऐसे आंसर। तो ये 4 हो जाएगा 25, 100:25, ये 4 ये 100। इज इट क्लियर और नॉट? Now come to Rydberg formula. Rydberg formula means it shows the wavelength of the radiation emitted when electron jump from one energy level to another level. Suppose this is higher energy level E2, lower energy level E1, electron jump from higher to lower. So you know according to Bohr's atomic model E2 minus E1 equal to h nu. तो E2 minus E1 देखो, E2 minus E1 equal to h nu. What is the formula for E? Minus 2π² m k² E4 by n² a², ये फॉर्मूला है। तो सब लिख दिए, इट इज फॉर 2 तो यहाँ N2 लिखा, इट इज फॉर 1 N1 लिख दिया। सब कॉमन ले लेंगे, खाली N2 और N1 बचेगा। लेकिन बच्चे ये माइनस N1 देखो, माइनस N2² था ना, तो N2² बाद में लिखा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, N1² पहले लिखा। और यह जो Hc/λ था, मुझे 1/λ चाहिए, तो Hc नीचे डिवाइड कर दिया, तो 1/λ इक्वल टू Hc इधर डिवाइड हो गया, 2π² m k² E4/hq(c). ये होता है कांस्टेंट, इसको रीडबर्ग कांस्टेंट R कहते हैं। तो व्हाट इज द रीडबर्ग फॉर्मूला? 1/λ इक्वल टू R होल इंटू 1/n1² माइनस 1/n2। रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज वेरी मच यूजफुल। What is the value of Rydberg constant? 1.097 into 10⁻⁷, and 1/R is near about how much? 91 nanometer.
फॉर्मूला बोलो, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एक ट्रिक है बच्चे, n1 छोटा होगा, n1 छोटा होगा तब तो 1 बाई n1 बड़ा हो जाएगा नहीं, ठीक है। जैसे 5 to 3 आएगा तो पहले यहाँ 3 पुट होगा, यहाँ 5 पुट होगा, क्योंकि एनर्जी में माइनस होता है इसीलिए। ओके, इज इट क्लियर? देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम बच्चे ऐसे एनर्जी लेवल होता है, ये देखो एनर्जी लेवल है n इक्वल टू 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3, 4, 5 लाइक दिस, ठीक है। तो दोबारा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज n इक्वल टू 1, नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। अच्छा बच्चा, पहले क्यों इतना ज़्यादा गैप दिया, बाद में क्या गैप कम हो गया? उसका रीज़न है, ये देखिए उसका रीज़न ये है, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर। फर्स्ट का होता है -13.6, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सेकेंड एनर्जी लेवल? -3.4। थर्ड का बाई 9 करोगे, 3 स्क्वायर ना, बाई 9 करोगे तो -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर नेक्स्ट वन इज -0.85। तो देखिए ये गैप नियर अबाउट 10 है, इसके बाद नियर अबाउट 1.9 है, तो गैप धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं, इसलिए ग्राफ ऐसा होता है। इज इट क्लियर? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू फास्ट एनर्जी लेवल, देखो हायर टू फास्ट, 3 to 1, 2 to 1, 5 to 1, ये हुआ लाइमैन सीरीज। कौन सा सीरीज? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू सेकेंड, बामर सीरीज। व्हेन हायर टू थर्ड, पास चेन। हायर टू 4, ब्रैकेट, एंड हायर टू 5, ओके, लाइमैन, बामर, पास चेन, ब्रैकेट, याद रह गया। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या था बोलो तो, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रीडबर्ग फॉर्मूला r होल इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो पहले हम बामर सीरीज का बात करते हैं, लाइमैन सीरीज। तो बच्चे लाइमैन सीरीज में कहाँ से कहाँ आता है? हायर टू 1, तो मतलब n1 1 हो जाएगा, लोअर 1, और n2 जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा, क्या क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पुट कर दो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r into 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r होल इंटू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। n का वैल्यू इन्फिनिटी, इसको हम n ले लिया नहीं, अरे हाँ कि नहीं? अब इसमें दो बात है, वन इज मैक्सिमम लैम्डा, अनदर इज मिनिमम लैम्डा। बच्चे एकदम कितना इजी है, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर 2 से 1 आएगा, नहीं तो इन्फिनिटी से 1 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। जितना एनर्जी गैप ज्यादा होगा लैम्डा उतना कम होगा। तो इन्फिनिटी से 1 तक आएगा तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। तो फॉर मिनिमम लैम्डा इन्फिनिट लेना है, फॉर मैक्सिमम लैम्डा जस्ट 2 to 1, ठीक है। तो व्हेन वी फाइंड 1 बाई लैम्डा मिनिमम, तो r होल इंटू 1 बाई 1 माइनस, यहाँ क्या लोगे? मिनिमम, हाँ मिनिमम के लिए ये इन्फिनिट लेना, यस। लैम्डा मिनिमम तो एनर्जी ज्यादा, इसलिए इन्फिनिटी। व्हाट इज 1 बाई इन्फिनिटी? 0। तो लैम्डा मिनिमम हो गया 1 बाई r। 1 बाई r नियरली कितना? 91। ओके, देन लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए कौन सा लोगे? 2 लोगे, 1 बाई 2 स्क्वायर। तो ये बन गया r 1 माइनस 1 बाई 4, दैट इज 3 बाई 4। तो उल्टा कर दो, 91 लैम्डा 4 बाई 3 इंटू r, तो 4 बाई 3 इंटू 91, नहीं ये कटेगा 30, 121 नैनोमीटर, क्या पता है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? इसके बाद कौन सा सीरीज आएगा?
बामर सीरीज वन बाय आर होगा बामर सीरीज बोलो हायर टू सेकेंड तो n1 हो जाएगा 2 और n2 हो जाएगा 3 4 5 एंड सो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r होल इनटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर इज इट क्लियर अब जब लैम्डा मिनिमम लोगे मिनिमम के लिए हाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 4 इंटू 1 बाई आर 4 इंटू 91 ठीक है और लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या करोगे 3 n2 equals to 3 r होल इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर क्योंकि सेकेंड का जस्ट ऊपर कौन सा है 3 नहीं समझ रहे हो तो 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर ये 9 4 36 5 उल्टा कर दो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 36 बाई 5 1 बाई आर 36 बाई 5 91 हाँ? 55.2 हाँ, very good. अब देखिए इट इज बिटवीन 364 टू 652 बच्चे दिस इज इन विजिबल रीजन ओनली बामर सीरीज इन विजिबल रीजन इससे पहले क्या था उससे कम था देखो 91 टू 121 ये था विजिबल से कम वेवलेंथ विजिबल से वेवलेंथ कम किधर जाएगा अल्ट्रा वायलेट क्योंकि इंफ्रारेड का बेटा सुनो रेड से ज्यादा इंफ्रारेड का वायलेट से कम अल्ट्रा वायलेट का वायलेट के पास अल्ट्रा वायलेट रेड के पास इंफ्रारेड ठीक है तो ओनली बामर सीरीज इन विजिबल रीजन अच्छा इस बामर के बाद क्या पास्टन के बाद उसके बाद पास्टन के लिए हायर टू थर्ड लाइमन बामर पास्टन के लिए बोलिए हाँ हायर टू थर्ड नहीं तो 1 बाई कर लोगे आप कर लोगे कि नहीं मुझे बताओ ओके ये सब हो जाता है एंड रिमेनिंग आर इन इंफ्रारेड रीजन है ये कैलकुलेट कर लेंगे देखो ये फॉर्मूला कैसे कैसे है बच्चे डिफरेंस इन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या E2 माइनस E1 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर होल इनटू दिस तो आपको एनर्जी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना नंबर ऑफ सेल दिया हुआ है तो ये यूज करना समझ में आया ये इजी होगा ठीक है तो जैसे मैंने दिया फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन emitted when electron jump from higher energy level to lower energy minus 3 point electron volt to minus 0.8 बच्चे आपको E1 E2 दे दिया तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू ठीक है याद करो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल करना पड़ेगा तब जाकर न्यू किस में आएगा हर्ट्ज में आएगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो हाउ कैन यू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल 1.6 into 10 to the power minus 90 okay in this way you can solve it अच्छा एक बात बताइए मुझे अच्छा बताइए वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू वन हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी ऑब्टेन हाउ मेनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस थर्ड टू वन आ रहा है कैसे कैसे आ सकता है ना 6 कैसे थर्ड टू वन कैसे आएगा देखिए बहुत इजी थर्ड सेकेंड और वन डायरेक्ट थर्ड टू वन आएगा नहीं तो थर्ड टू टू आएगा 2 to 1 आएगा तो कितना हुआ 3 हुआ अच्छा बताइए फोर्थ नहीं फिफ्थ टू सेकेंड हाउ मेनी वेज यू कैन ऑब्टेन द स्पेक्ट्रल लाइन
5 4 3 2। देखो 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 2 का खत्म हो गया। 5 से 3, 4 से 3, अब 5 से 4। ये बहुत बेस्ट मेथड है कैलकुलेट करने का। पहले 2 का खत्म करो। 5 से 2, हाँ 4 से 2, 3 से 2, यहाँ 3 हो गया। अब 3 को आ जाओ। 5 से 3, 4 से 3, फिर 5 से 4, टोटल 6 हुआ। ऐसे देखना, ओके। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला नहीं। Yes, you can use the formula. You have to choose any 2 out of 1 2 3 4। 4 से 2 सिलेक्ट करना है, ग्रुपिंग हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन ले दो। अच्छा देखो यहाँ देखिए, देखो ये क्वेश्चन है। दिस इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0 हाईएस्ट होता है, मालूम है सबको। 0 इज द हाईएस्ट, देन -2 -4 में ऐसे दिया हुआ है। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ ABCD व्हिच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? द एनर्जी डायग्राम इज गिवन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? देखो वेवलेंथ एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। लैम्डा लॉन्गेस्ट मीन्स डेल्टा इज स्मॉल। किसके लिए स्मॉल हो रहा है? A B C D। A के लिए कितना है डिफरेंस? देखो 0 से -2, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। B के लिए 0 to 4.5। C के लिए -2 to -4.5, 2.5। और इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम कहाँ हुआ? 2। इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है। व्हिच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? D। अच्छा, वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखो। लॉन्गेस्ट A, देन C, देन B, देन D। इज इट क्लियर? ओके। यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है। वेवलेंथ पूछा है C का। अच्छा पूछा है बच्चे, देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया। 275 नैनोमीटर किसके लिए प्रोड्यूस होगा? ये जो 4 दिया हुआ है, फॉर व्हिच ऑफ देम द वेवलेंथ ऑफ 275 नैनोमीटर विल बी प्रोड्यूस। तो 2.75 का एनर्जी निकाल दो पहले। बच्चे एनर्जी फॉर्मूला बोलो। SC बाई लैम्डा। एनर्जी जो फोटोन निकलेगा, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज SC बाई लैम्डा। तो SC बाई लैम्डा नैनोमीटर में रहेगा, इट इज नियरली इक्वल टू 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये लैम्डा इन नैनोमीटर, ये कैलकुलेशन करने के बाद 1240 आएगा। तो 1240 बाई लैम्डा इज हाउ मच? 275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 5 में काट दो, 5 2 10, 248 बाई 55, 248 बाई 55, 4.5 के आसपास आ रहा है। 4.5 बच्चे देखो इसमें कौन सा डिफरेंस 4.5 आ रहा है? वन .5 to 3.5 -3.5 तो 2 होगा। ये 0.85 to 3.5, ये लगभग 1 है, तो 4.4 के आसपास हो रहा है। ओके, नहीं समझ में आया, बताओ।